My name is Dr. Rekha Kumari, as I've already been introduced. My presentation is a bit repetition of Sir's presentation because the goal is again the same, mechanical thrombectomy, and its importance and importance of time in the management of acute stroke. So in neurology, we say time is brain. Every minute a stroke causes the death of 20 to 30 millions of the neuron. So time is brain. Within you can see an image that shows the brain CT MRI, and the red one is an infarcted tissue and the yellow one is still a salvageable tissue. Up now within minutes, within 10 minutes, then 1 hour, then 3 hour, then 6 hour, this red tissue proceeds and involves the whole brain. अब प्रॉब्लम ये है, जैसे सर ने अभी ट्रायल्स बताए थे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के, तो अगर ये जो 10 मिनट्स एंड 6 आवर्स वाला टाइम है, इन बिटवीन अगर हमने एक्ट किया देन वी कैन प्रिवेंट द ब्रेन. अगर इसके दौरान में हमने एक्ट नहीं किया तो वी लूज द टिश्यू एंड दैट कॉजेज अ परमानेंट डैमेज. सो इन द टर्शरी केयर हॉस्पिटल वी और इन द डेवलप्ड कंट्रीज एक ये चीज़ होती है बी फास्ट. ठीक है, बी फास्ट ये है दैट एवरी लेमैन एंड एवरी मेडिकल पर्सनल शुड नो. जो हमारे पैरामेडिक स्टाफ हैं, जो हमारे जो अवाम है, लेमेन्स है, उन्हें हमें ये बताना चाहिए कि दीज आर द थिंग्स, इसमें आपको एक्ट करना है एंड यू शुड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल बिकॉज टाइम इज ब्रेन. ठीक है, तो दीज आर द बी इज फॉर बैलेंस. बैलेंस का मतलब है लॉस ऑफ बैलेंस, हेडेक और डिजीनेस, वर्टाइगो. कितने सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जो जस्ट हेडेक डिजीनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं और हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज पी लो सही हो जाएंगे, एंड फॉर टाइम बीइंग देयर सिम्टम्स डिसअपियर एंड दे प्रेजेंट विद acute stroke after like 1 hour, 2 hour or 6 hours. Then eye, blurred vision, loss of vision. Face में drooping of the one side of the face. arm में arm of leg weakness. Speech problem. Then we should call the ambulance and send the patient to the hospital right away. So this has been followed in the developed country like US, UK, but we are far away from this. You should act on this. So in our neurology we say कि बेस्ट ट्रीटेड स्ट्रोक इज दैट हैज नेवर हैपेंड. स्ट्रोक में प्राइमरी प्रिवेंशन इज अ की. इफ वी फाइंड दीज पेशेंट्स विद दीज प्रॉब्लम राइट ऑन द टाइम यू कैन एक्ट टाइमली. ठीक है, तो विद इन फर्स्ट आवर दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड डू. 0 minute वी शुड सस्पेक्ट द स्ट्रोक. विद इन 10 minutes you should initiate the taking patient history, examination, and on table you perform NIHSS score. That score is 11-point score. Then in that score we detect कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है पेशेंट की, ओरिएंटेशन क्या है, आर्म वीकनेस है या नहीं, स्पीच प्रॉब्लम है या नहीं. अब वो स्कोर हमारा 0 से लेके 42 तक होता है, जिसमें अगर NIHSS स्कोर इज लेस देन 5 हम कहते हैं माइल्ड सिम्टम्स हैं. इफ इट इज 5 to 9 हम कहते हैं मॉडरेट सिम्टम्स हैं. अगर 10 to 15 है देन इट इज अ सिवियर स्ट्रोक. एंड लेट्स हमने ये देख लिया कि दिस स्कोर इज इन सिवियर. 15 मिनट के अंदर हमने एक स्ट्रोक टीम को अलर्ट कर देना है, रेड अलर्ट कर देना है. देन विद इन 25 मिनट हमें सीटी स्कैन करवाना है एंड ऑन सीटी स्कैन वी चेक फॉर द एस्पेक्ट स्कोर. व्हाट इज एस्पेक्ट स्कोर आई एम टेलिंग यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स. एंड within 60 minutes give TPA or plan for the mechanical thrombectomy. This has been followed in the tertiary care hospitals or in the developed countries. Within 60 minutes you should act. NIHSS is a reliable and valid and it has become a standard of the treatment, and it is used as a part of clinical trial and as a part of clinical care. NIHSS score is a part of assessment that help determine whether a patient is candidate for reperfusion therapy or not. अब अगर किसी का पेशेंट का NIHSS less than 5 है तो you should not consider for the mechanical thrombectomy or TPA. अगर इसका स्कोर आपका more than 10 or 15 आता है then we plan for the mechanical thrombectomy. Then अच्छा this not only this baseline NIHSS score is a predictor of your long-term outcome after acute stroke.
कैलकुलेट। अब हमें इसमें ये करना होता है, हमें 2 सीटी लेने होते हैं एक्सेल। एक हमें लेना होता है बेसल गैंग्लिया की लेवल पे, दूसरा हमें लेना होता है वेंट्रिकल की लेवल पे। टोटल स्कोर इसका 10 होता है। ईच एरिया जो हमारा नजर नहीं आ रहा है इन्वॉल्व है उसका हम 1 पॉइंट डिडक्ट करते हैं। ठीक है, हम इस ये है, दिस इज द ग्राफिकल स्कैन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। हमने बेसल गैंग्लिया की लेवल पे ये किया तो ये M1, M2, M3 सेगमेंट्स होते हैं। देन अगर आपने गैंग्लियोनिक लेवल पे, वेंट्रिकल लेवल पे किया तो M4, M5, M6 सेगमेंट्स होते हैं। अब ये सेगमेंट्स जब डिसअपीयर होते हैं तो हम उसका एस्पेक्ट 1 डिडक्ट करते हैं। व्हेन एस्पेक्ट इज लेस देन 7 देन वी प्रेडिक्ट कि 3 मंथ आउटकम इसका वर्स्ट होगा। जैसे सर ने हमें बताया कि 90 डेज मोर्टेलिटी हम काउंट करते हैं, तो 90 डेज इज इक्वल टू 3 मंथ्स। तो स्ट्रोक का हम अर्ली नहीं करते। हो सकता है हम स्ट्रोक को ट्रीट करें, टीपीए दें, विद इन 1 वीक आपको पेशेंट बेटर लगे, लेकिन यू शुड नॉट कॉल इट इम्प्रूव्ड और गुड आउटकम अंटिल उसकी 3 मंथ मोर्टेलिटी हम चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है विद इन 15 डेज उसमें हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और पेशेंट वर्सेस हो जाए। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रोक में विद इन 25 मिनट आपने सीटी कराना होता है। तो जरूरी नहीं है हर दफे सीटी में आपको एक हाइपोटेंस एरिया शो हो जाए जो सजेस्ट करे कि भाई इसकी में स्ट्रोक है। समटाइम्स देयर आर अर्ली स्ट्रोक साइंस, these signs should be picked. What are the early stroke signs? That is loss of insular ribbon, obstruction of the lentiform nuclei, sulcus effacement, थोड़ी सी मिडलाइन शिफ्ट हमें नजर आ जाती है, एक साइड का वेंट्रिकल आपको नजर आता है, दूसरी साइड का वेंट्रिकल थोड़ा इफेस्ड होता है। These signs should be picked by an interventional neurologist or the radiologist available. As stroke is a multidisciplinary team management symptom, so radiologist should be available. हो सकता है interventional neurologist या neurologist जो या हमारे medical practitioner है उन्होंने नहीं pick की हुई, so you should take an opinion from the radiologist and pick these signs and treat this patient as a acute stroke. This is a flowchart representation of the event. अगर a patient comes with suspected acute ischemic stroke and this is having potentially disabling neurological deficit, what is the time? हमें ये देखना होता है what is the time patient was last known to be well. पेशेंट इससे ठीक बिल्कुल कब था? अगर लेस देन 4.5 आवर में आ जाता है हमारे पास पेशेंट, उसका सीटी कराएंगे। सीटी कराते हुए हमने चेक कर लिया कि हेमरेज आउट हो गया है, फिर हम उनका अरेंज करेंगे आईवीटीपीए विद इन 4.5 आवर विद नो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई। अब व्हाट इज द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया? ये है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में नंबर 1 ये है कि अगर सीटी पे में हेमरेज आ जाता है। नंबर 2 है अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली एलिवेट होता है, सिस्टोलिक मोर देन 185, डायस्टोलिक मोर देन 110, यू शुड नॉट कंसिडर द पेशेंट राइट फॉर द टीपीए ट्रीटमेंट। देन अगर उसको द पेशेंट इज ऑन एनी एंटीकोगुलेंट, जैसे हमने देखा A5 के पेशेंट होते हैं, वाफरिन पे होते हैं, अगर उनका INR मोर देन 1.7 है या PT मोर, prothrombin time more than 15 second है, APTT more than 40 second है, you should not consider that patient for the TPA. Why? This will increase the chances of hemorrhage in this patient. Then अगर patient को हमने oral anticoagulant दी हुई हैं, ठीक है, तो फिर उसमें देखेंगे, फिर therapeutic index चेक करेगी। अगर patient का platelet count less than 1 lakh है, then we will not consider that patient. और अगर एक्टिव इंटरनल ब्लीड चल रही है किसी और एरिया से अदर देन ब्रेन, देन अगर पेशेंट सिवियरली हाइपोग्लाइसेमिक है, आपने उसका ग्लूकोज दिया और आपका उसका सिम्टम्स ठीक हो गए, देन यू शुड नॉट कंसिडर दिस पेशेंट एज अ कैंडिडेट फॉर टीपीए। हिस्ट्री, अगर पेशेंट को विद इन प्रीवियस 3 मंथ्स में इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है, प्रीवियस इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, इंट्रा एक्सिल इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म है, GI malignancy, GI hemorrhage within previous 21 days है, इंट्राक्रेनियल और इंट्रास्पाइनल सर्जरी की प्रीवियस 3 मंथ्स में हिस्ट्री है, और प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इन पेशेंट्स को हम एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम टीपीए। तो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। इतना अर्जेंसी नहीं है कि हमें बस हर पेशेंट को टीपीए देनी है, अ डिटेल्ड हिस्ट्री इज नेसेसरी। देन अगर पेशेंट को 4.5 आवर से 24 आवर्स के दरमियान में लाया जाता है, देन वी कंसिडर MRI विद डिफ्यूजन वेटेड इमेज एंड फ्लेयर इमेजेस और परफ्यूजन इमेजिंग, CT परफ्यूजन इमेजेस
और MRI with diffusion weighted images and perfusion weighted images. अगर उसमें हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स में मिसमैच मिल जाता है. अब व्हाट इज मिसमैच? दिस इज मिसमैच. Mismatch is an imaging marker that is used to select patient for mechanical thrombectomy who have salvageable brain tissue. When an infarct occurs, there is a small infarct that is called as core. Surrounding area is called as penumbra, as sir told already. That penumbra is a salvageable tissue that can be saved from infarction. तो अगर हम विद इन टाइम एक्ट करेंगे तो उस पेनम्ब्रा को हम डेड होने से बचा सकते हैं. अब वो पेनम्ब्रा का मिसमैच देखने के लिए हम दो तरह की इमेजिंग कराते हैं. एक इमेजिंग हम कराते हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस. डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस क्या शो करती हैं? डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस इस तरह से होती हैं. हमने एक पेशेंट का MRI कराया, हम सिंपल MRI करते हैं, हमारे पास हर जगह पे डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस अवेलेबल भी नहीं है. डिफ्यूजन सिंपल MRI में 3 इमेजेस होती हैं, T1, T2 एंड फ्लेयर इमेजेस. ठीक है, हमने T1 पे कराया, हाइपो मिल जाता है, T2 पे हाइपर मिल जाता है, फ्लेयर में हमें सिग्नल्स मिल जाते हैं हाइपो वाले. अच्छा, हमने ये MRI कराया, हमें कुछ भी नहीं मिला. फिर हमने डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस कराया तो उसमें हमें एक हाइपर इंटेंस सिग्नल मिल जाते हैं. ठीक है, तो फिर हम उसमें क्या देखते हैं? हाइपर इंटेंस सिग्नल और डिफ्यूजन वेटेड को फ्लेयर से कंपेयर करते हैं. अगर हाइपर इंटेंस सिग्नल डिफ्यूजन वेटेड पे आ रहे हैं लेकिन फ्लेयर पे कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आ रही, हम कहेंगे दिस स्ट्रोक इज अक्यूट. ठीक है, तो फिर उसको फर्दर कंफर्मेशन करवाने के लिए हम परफ्यूजन वेटेड इमेजेस कराते हैं. तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजेस शोज यू द कोर while the perfusion weighted images shows you the penumbra. जब अगर perfusion weighted images और diffusion weighted images में हमें एक mismatch नजर आ जाता है, then you consider for the mechanical thrombectomy. You have the time window for the mechanical thrombectomy. So अगर इस patient को more than 24 hours हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? Then हम वही करेंगे जो हम करते आए हैं, medical management and secondary prevention. इन चीज़ों के लिए दो ट्रायल्स, जो पुराने जो दो ट्रायल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ. दैट इज डॉन एंड डिफ्यूज ट्रायल फॉर द मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी. डॉन एंड डिफ्यूज ट्रायल 206. These are open label trial that was done on 206 adults with acute ischemic stroke who were last well known to 6 to 24 hours earlier. जिन सबको इंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक थे एंड जिनका NIHSS स्कोर 17 से ज़्यादा था और उनका जो डिफ्यूजन और परफ्यूजन वेटेड पे जो दीज डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन वेटेड के इमेजेस जो हैं वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस पे होते हैं. तो उनका जो वो इन्फार्क्ट वॉल्यूम था मोर देन 8 ml था. अप्रॉक्सीमेटली 55% ऑफ द पेशेंट हैड वेकअप स्ट्रोक. अब व्हाट इज वेकअप स्ट्रोक? वेकअप स्ट्रोक इज दिस कि अगर आपने पेशेंट, ज़्यादातर हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं क्लिनिक्स में जो होते हैं कि रात को सही सोए थे, सुबह उठे हैं तो उनको राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड वीकनेस है या पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक है. अब यू डोंट नो व्हेन स्ट्रोक डेवलप. रात को 4 बजे स्ट्रोक हुआ, 5 बजे हुआ, 6 बजे हुआ या सुबह 9 बजे हुआ, बिकॉज दिस इज वेकअप स्ट्रोक. तो इस स्ट्रोक को हम कंसिडर करते हैं फॉर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी एंड TPA एज वेल. तो इसको हम इस पे एक ट्रायल हुआ था दैट वाज कॉल्ड एज वेकअप ट्रायल. वैसे तो हम TPA का विंडो विद 3 to 4.5 आवर्स में करते हैं, बट वेकअप ट्रायल में पेशेंट जब से जागा तब से हम टाइम करते हैं. तो these patients were also being taken and at 90 days rate of functional independence defined by MRS score was greater compared to in the thrombectomy group compared with the control group. तो ये ट्रायल ये क्लियर करता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विद इन 6 to 24 आवर्स, हम उनका डिफ्यूजन वेटेड इन CTP पे अगर देखते हैं कि मिसमैच है और हम उनको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी के लिए लेकर जाते हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर्ड विद दोज पेशेंट जिनमें हमने सिर्फ मेडिकल थेरेपी चलाई हुई है. देन डिफ्यूज ट्रायल वाज फॉर द पेशेंट जिनमें प्रॉक्सिमल MCA एंड ICA का स्ट्रोक हुआ था 6 to 16 आवर अर्लियर. इन्होंने थोड़ा सा इन्फार्क्ट का साइज और वो चेंज किया था. थीम वही है कि अगर पेशेंट को हमने अर्ली लेकर आया है और 90 डेज मोर्टेलिटी हमने चेक की है तो पेशेंट जिनमें एंडोवेस्कुलर थेरेपी दी गई है
या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की गई है, उनकी जो है ये प्रोग्नोसिस ज़्यादा अच्छी है एट 90 डेज कंपेयर टू दोज पेशेंट जिनकी सिर्फ मेडिकल थेरेपी हुई है। तो ये दोनों ट्रायल इस चीज़ को एम्फोसाइज करना चाहते हैं, अगर आप अर्ली पेशेंट को प्रेजेंट करोगे तो पेशेंट को हम सेव कर सकते हैं फ्रॉम द डिसेबिलिटी। So this is again the flow chart that is representing these things. अच्छा, this one thing was this, अगर ये सारे जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, this is for the large vessel obstruction. Small vessels में इनका इतना अच्छा रोल नहीं है। तो हमने पेशेंट को ये देखना है, अगर आपके साथ पास प्रेजेंट करता है अक्यूट स्ट्रोक के साथ, तो हमने लास्ट वेल नोन टाइम देखना है, देन उसका NIHS स्कोर निकालना है, फिर हमने CTP वो कराना है, देन यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट यू हैव टू डू। So our take-home message is that appropriate usage of imaging modality is necessary. अब मेडिकल पर्सनल, इवन GP जो हैं या जो हमारे जो जनरल मेडिसिन के कैंडिडेट हैं, अदर देन इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट या इमरजेंसी मेडिसिन वाले हैं, दे शुड नो कि हाउ टू यूज़ द इमेजेस एंड व्हेन टू यूज़ द इमेजेस, व्हेन टू डू विच इमेज, और कितना जल्दी हमें स्ट्रोक टीम को अलर्ट करना है। Both CT and MR imaging are useful for the comprehensive evaluation of the stroke. Interventional radiology now increasingly popular as primary therapeutic option in stroke, and this should be used, and stroke can be prevented. Disability is preventable. But the importance of time is there. अगर within 24 hours हमने act कर लिया, you can prevent it from the disability. So today take home message is that कि जितना जल्दी diagnose होगा उतना जल्दी care होगा. Time is brief. Thank you.